Hello, dear students. Hello, dear friends. Today, I welcome you to one of the best videos you have ever seen. I should say, the best video. The reason is that today I have brought wonderful thoughts by great people or great personalities or very, very eminent people. Of course, these great people have great thoughts, and these thoughts are actually make them great also, and of course, they are inspiring for us also to become great. And I am sure you will welcome all these thoughts. So, once again, I repeat very inspiring thoughts by great personalities or great thoughts by great people. Because our thoughts are responsible for our construction or for our destruction. That's why we should possess wonderful thoughts. Thoughts make a man. A person is never bad, his thoughts make him bad. A person is great because of his great thoughts. A person is common because of his common thoughts. That's why our thoughts should be uncommon. I hope you understand. So, in this session, in this video, we are going for such wonderful thoughts. Actually, they are prescribed or they are quoted by great people. Are you ready? They are ready? So, I will use Hindi as well as English. English for improvement of English and Hindi, of course, for better understanding. Because if you understand, then only you can carry on. Then only you can, execute it. Okay, let's start. So, first thought is really wonderful. Heaven never helps the man who will not act. भगवान उसे मदद नहीं करता जो काम नहीं करता. दैट्स ट्रू. बैठे बैठे सपने देखने वाले को कुछ नहीं मिलता. भगवान उसे मदद करता है जो काम करता है. हियर हेवन रेफर्स फॉर गॉड. इट्स सिनोड की मेटोनमी, सॉरी, मेटोनमी. यस, भगवान उसे मदद करता है जो खुद मदद करता है, मीन्स खुद काम करता है. दैट्स ट्रू एंड वेरी ट्रू. नेक्स्ट वन, एडवांटेज इज द गिफ्ट ऑफ फॉर्चून. कभी कभी कुछ बातें हमें फॉर्चून से मिलती है, नसीब से मिलती है. कभी कभी एक आधा सपोज प्लस एडवांटेज हो गया, कुछ एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड कुछ हमें मिल गया, तो दैट टाइम वी शुड बिलीव दैट इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड और इट्स अ गिफ्ट ऑफ फॉर्चून. वो नसीब का पार्ट है, लेकिन मोस्टली ऐसा बहुत कम बार होता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हार्डवर्क ओनली पेज ऑफ. ओके, नेक्स्ट वन, a bad workman quarrel with his stool. Nothing is more expensive than start. So they are actually different thoughts. By mistake they are written. A bad workman always quarrel with tool. नाच ना आए आंगन टेढ़ा. Actually it is a proverb. Correct? नाच ना आए आंगन टेढ़ा. कुछ लोग देखो, मैं करता करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ. मैं बहुत अच्छे मार्क लाऊंगा, लेकिन वो टीचर बराबर नहीं पढ़ा रहे. मैं अच्छा, बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रिसोर्सेस नहीं है, सोर्सेस नहीं है. ऐसे रोने वाले को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो रोता है. नाचना है आंगन टेढ़ा. Yes, so that is really, and all these thoughts are really universal. They have universal significance, and they are right, absolute right. Okay, my dear. Next one. Actually, one more is added in that category. Nothing is more expensive than start. Yes, और एक थोड़ा सा actually should be separated, लेकिन उसमें मिक्स किया गया है by mistake. Start, कौन सा काम स्टार्ट करो? नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टार्ट. एक्चुअली बहुत से लोगों को स्टार्ट ही नहीं हो, जस्ट बैठे बैठे सपने देखते हैं. बैठे बैठे सपने से काम पूरा नहीं होता, आपको स्टार्ट करना गया. नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टार्ट. यस, स्टार्ट हो गया काम, गाड़ी का पहला गियर डालने के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ आता है. दैट्स ट्रू, इसीलिए काम स्टार्ट करो. नेक्स्ट वन, अ मैन इज बॉर्न अकॉर्डिंग टू हिज ओन पास्ट डीड्स. भगवद गीता सेज, भगवद गीता के अनुसार, इफ यू आर स्पिरिचुअल, तो भगवद गीता सेज आदमी को अपने पाक जो प्रीवियस ईयर प्रीवियस बर्थ जो कर्म हुए उससे, उसके कारण जो भी मींस नेक्स्ट बर्थ ही हैज टू सफर और ही हैज टू व्हाट आई एम से ही हैज टू मैनेज ऑल द डीड्स. आदमी के प्रीवियस पहले पिछले जन्म के कर्म भी हमारे आगे के जन्म के लिए भी मीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू भगवद गीता. अब इट डिपेंड्स वेदर यू आर स्पिरिचुअल और वेदर यू बिलीव इन दिस फिलोसॉफी. ओके, बट थॉट इज थॉट. भगवद गीता ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, महाकाव्य. नेक्स्ट वन, A house without books is like a room without window. क्या बात है. जिस घर में बुक्स नहीं है वो तो घर ऐसा है, घर है लेकिन विंडो नहीं है. एंड दैट्स वेरी ट्रू. घर में बुक्स नहीं है, ऑफ कोर्स दैट हाउस इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, बिकॉज बुक्स आर बुक्स. आई होप आई एग्री. यस, और एक एक फिलोसोफर ने सही कहा है, जिस घर में टीवी का साइज बुक सेल्फ से बड़ा है, उस घर के लोगों पे मेरा भरोसा नहीं है. आई रिपीट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स सेड, द हाउस वेयर टीवी साइज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द बुक सेल्फ, आई डोंट बिलीव
इन दिस फैमिली ही इज ट्रू। जिस घर में अपने टीवी का साइज बड़ा है बुक सेल्फ से, सो ही वांट्स टू सी दैट बुक का कबर्ड का साइज बड़ा होना चाहिए टीवी से। अब इस बात को यू आर सेंसिबल, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेड। ओके, नेक्स्ट वन, borrow from him who has, sorry, who has angel's face and repay him who has devil's। क्या बात है, इट इज सेड बाय, इस जापानीज प्रोवर्ब है, जापानीज प्रोवर्ब है, जापानीज प्रोवर्ब है। उससे उधार ले लो जिसका चेहरा भगवान की तरह है, एंजल भगवान के देवदूत का तरह, और उसको इमीडिएटली रिपे करो जो जिसका चेहरा शैतान की तरह है। यस, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग उधार लेने के बाद फिर बहुत ही पीछे लगते हैं, और यू नो समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड अस एंड दे अब्यूज, समटाइम दे गेट एंग्री विथ अस। तो उनसे उधारी मत लो, जरूर उधार, समटाइम वी हैव टू बारो दैट, उधार उनसे ले लो जो अच्छा आदमी है। मीन्स सपोज बाई चांस मीन्स अनफॉर्चुनेटली आप टाइम पे रिपे भी नहीं किए, तो ही कैन अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जापानीज प्रोवर्ब है। क्लियर? ऑल दिस थॉट्स आर नॉट मेड बाय जादव सर, actually they are thoughts by someone or by proverb, or maybe they are having some universal significance. Okay, next one, borrowers should not be choosers। ये भी proverb है, कहावत है। जो उधार ले रहा है वो चूज नहीं करना चाहिए। समझो एक आदमी को उधार लेने का है और वो बोल रहा है मुझे 5,000 नहीं 10,000 रुपये दे दे, नहीं, क्योंकि आप बारो है, आपको यू हैव टू लिसन, दूसरों जो दे रहे उसको सुनना पड़ेगा। अगर समझो मुझे, एक आदमी के पास 3 गाड़ियां हैं और मैं, मुझे गाड़ी की जरूरत है और मैं उसे बोल रहा हूँ मुझे वो नहीं, वो बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, वो देता नहीं, क्योंकि यू आर बारोवर्स एंड बारोवर्स शुड नॉट बी चूजर्स। वहां पे अपनी लिमिटेशंस है एंड वी हैव टू बी अंडर लिमिट्स, वी हैव टू बी विद इन लिमिट्स। इट वांट टू से कितनी मीन्स दिस थॉट्स यू नो दे टीच द वैल्यू ऑफ लाइफ। कुछ समाज ने बनाने वाले प्रोवर्ब से, और कहावत तो आपको मालूम है, दे आर मेड बाय सोसाइटी ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट वन, none but brave deserve the best। इट्स अ ड्राइडन, वेल नोन राइटर। ड्राइडन सेज सिर्फ जो लोग मेहनती है, हिम्मतवान है, उनको ही बेस्ट मिलता है। यस, उनको ही बेस्ट मिलता है, एंड दैट्स व्हाई वी शुड हैव द करेज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी सिर्फ ब्रेड खा के जीता नहीं। न्यू टेस्टामेंट, एक्चुअली इट इज फ्रॉम ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक एक्चुअली। सिर्फ रोटी से आदमी जीता नहीं, सोशल कॉन्टेक्ट चाहिए, समाज चाहिए, रिलेशन चाहिए, लोग चाहिए साथ में। सो सिर्फ रोटी खा के आदमी जिएगा नहीं, ही नीड्स रिलेशंस आल्सो, ही नीड्स सोशल कॉन्टेक्ट। दैट्स व्हाई वी शुड हैव गुड कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, वी शुड टॉक नाइसली टू अदर पीपल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, अ कैट इन ग्लोव्स कैचेस नो माइस। घर में बैठे बैठे, इसका मीनिंग एक्चुअली इट्स अ फेमस प्रोवर्ब, कहावत है। घर में बैठे बैठे जो लोग आराम कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता। जो कैट ग्लोव्स पहन के बैठी है उसको खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग आराम करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। दैट इज द ग्रेट लेसन बाय दिस प्रोवर्ब। ओके, नेक्स्ट वन, थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज। थिंग्स चेंज नहीं होते, हम चेंज हो जाते हैं, और हमें चेंज होना भी पड़ता है। जिंदगी भर बचपन मिलेगा क्या? नहीं। जिंदगी भर स्कूल एज मिलेगा? नहीं। जिंदगी भर कॉलेज एज मिलेगा? नहीं। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। थिंग्स आर सेम बट वी हैव टू चेंज। नेक्स्ट, द कैरेक्टर इज लाइक व्हाइट पेपर। कैरेक्टर रहता है व्हाइट पेपर की तरह। इफ वंस ब्लॉटेड इट कैन हार्डली बी एवर मेड टू अपीयर व्हाइट एज बिफोर। कैरेक्टर को इसलिए बोलते हैं, कैरेक्टर में चरित्र रहता है ग्लास की तरह, एक बार ग्लास टूट गया बात खत्म, उस पर लकीर तो आनी है। सो कैरेक्टर व्हाइट पेपर की तरह रहता है, एक बार उसको ब्लैक डॉट हो गया, कितना भी आप फेविस्टिक लगाओ, सॉरी फेविस्टिक नहीं, ये व्हाट से व्हाइटनर लगाओ, डॉट इज डॉट। सो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट अवर कैरेक्टर और चारित्र्य। यस, दैट इज बिकॉज कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी। क्लियर? नेक्स्ट वन, अ क्लेवर मैन इज अ प्रैक्टिकल मैन। एनोनिमस किसी ने कहा है, नाम तो नहीं है, किसी ने कहा है एक होशियार आदमी प्रैक्टिकल भी रहता है। प्रैक्टिकल का मीनिंग आप समझ लीजिए। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है मालूम है क्या? प्रैक्टिकल मीन्स जो आदमी इमोशनल नहीं है। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे कितनी टेंशन है, ऐसा सोचने वाले आदमी को बोलते हैं इमोशनल। और इमोशनल लोग ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। और प्रैक्टिकल लोग, अब देखो स्टूडेंट है, वो रोना नहीं चाहिए, मुझे कितना काम है, मुझे कितनी स्टडी करनी पड़ती है, मुझे टाइम नहीं, नो नो नो।
तू स्टडी करेगा तो आगे जाएगा। ये हो गया प्रैक्टिकल थॉट, व्यवहारिक, वी कॉल इट दैट। यस, सो प्रैक्टिकल का अपोजिट क्या है? इमोशनल। नेक्स्ट वन, इट इज सेड बाय एनोनिमस। एक शेक्सपियर का वन ऑफ द बेस्ट थॉट्स, कावर्ड्स आर बैड। डरने वाले लोग भले बुरे होते हैं, बट दे आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन उतने वर्स्ट नहीं होते, उतने ही बुरे नहीं होते डरने वाले। क्लेवर आर गुड बट दे आर नॉट बेस्ट। क्लेवर होशियार रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि होशियार लोग बहुत ही बेस्ट रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो cowards die many times before their death. The valiant means brave, never taste death but once. Wonderful thought by the king of literature, English literature, William Shakespeare. He says, डरने वाले लोग हर दिन मरते हैं, लेकिन शूर, ब्रेव, हिम्मतवान लोग एक ही बार मरते हैं। इसलिए हमें हिम्मतवान रहना चाहिए, डर डर के जीना नहीं चाहिए। क्लियर? इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थॉट बाय ग्रेटेस्ट what am the king of literature of that, of course, that is Shakespeare. Clear? Yes. Next one, that's why in the beginning only I told you this thought change your mindset, will change your mindset, and of course thought change, life get change. Next, earn by day and dance by night. इसका मीनिंग क्या है? इस प्रोवर्ब, कहावत है ये, दिन भर मेहनत करो एंड आराम से जिंदगी जियो। जो मेहनत करेगा वो मेवा खाएगा, नहीं करेगा वो रवा खाएगा। यस, समवॉट इन हिंदी लैंग्वेज वी से, मेहनत करना यंग एज में, 30 तक मेहनत करो, 30 के बाद लाइफ को एंजॉय करो। आपके एज के 30 तक मेहनत करो, बाद में लाइफ को एंजॉय करो। लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, 30 तक एंजॉय करते हैं, बाद में फिर मेहनत करते हैं। मीन्स संघर्ष टाइम संघर्ष करो और आराम के टाइम आराम करो। लोग थोड़ा सा उल्टा करते हैं, आराम के टाइम संघर्ष टाइम आराम करते और आराम के टाइम संघर्ष करते। दैट इज नॉट गुड। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेवर वॉज एनीथिंग ग्रेट अचीव विदाउट डेंजर। इट्स एक्चुअली मैकियावेली ने कहा है, ग्रेट फिलोसोफर, जिंदगी में रिस्क के बिना कुछ नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क मीन्स क्या? मेहनत करना पड़ेगा। रिस्क मीन्स बहुत ही रिस्क नहीं है। समझो आप 3 घंटे स्टडी करें तो 5 घंटे 6 घंटे स्टडी करने की रिस्क लेना चाहिए आपको। कुछ नहीं हो जाएगा, कोई नहीं मरेगा। यस, वी हैव टू टेक रिस्क एंड वी हैव टू एक्सेप्ट डेंजर। नेक्स्ट वन, हाँ, माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट, रॉबर्ट सदे सेज। माई डेज अमॉन्ग द डेड आर पास्ट। जो बीत गया उसके बारे में सोचता नहीं, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि आदमी के हाथ में ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट खराब हो गया तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। सो इसलिए होशियार आदमी प्रेजेंट में बहुत अच्छे जीते हैं ताकि फ्यूचर में अच्छा रहे। क्योंकि पास्ट तेरे हाथ में नहीं, जो चला गया, फ्यूचर तेरे हाथ में जो चला गया, बट प्रेजेंट तो है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। क्लियर? नेक्स्ट, द वाइज ग्रीव्स नाइदर फॉर द लिविंग नॉट फॉर डेड, भगवद गीता अगेन सेज। भगवद गीता सेज, एक होशियार आदमी कभी रोता नहीं, जो गए उनके लिए भी नहीं और जो है उनके लिए भी नहीं। ही इज न्यूट्रल। क्योंकि होशियार लोग हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। क्योंकि पास्ट, जस्ट नाउ आई टोल्ड, पास्ट तो तेरे हाथ में नहीं है, और फ्यूचर, कभी कभी कुछ सेंटेंस का लिटरल मीनिंग नहीं होता, थोड़ा सा उसका हिडन मीनिंग होता है। नेक्स्ट वन, डेथ लाइक बर्थ इज सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या बात है? अगेन प्रोवर्ब, जैसे बर्थ इज सीक्रेट वैसे डेथ भी सीक्रेट है। डेथ हैज नो कैलेंडर। मृत्यु आपको बोल के नहीं आती कि मैं आ रही हूं। सो डेथ डजंट कीप कैलेंडर। सो वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर डेथ। एनी टाइम, एनी मोमेंट इट मे कम, बट जब तक है वी शुड लिव नाइसली। ओके, नेक्स्ट वन गुड स्कूल मास्टर इज वर्थ 1000 प्रीस्ट, आरजे इंगॉर्सिल सेज। एक स्कूल का मास्टर बराबर रहता है 1000 प्रीस्ट के इतना। बिकॉज प्रीस्ट टेक केयर ऑफ गॉड एंड डिवोटीज, बट अ स्कूल मास्टर टेक्स केयर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, hundreds of students. He can bring revolution in hundreds of students, among hundreds of students. That's why one school teacher is equal to 1000 priests. ये मेरे वर्ड्स नहीं है, by this great philosopher. Because देखो ना, एक सर्टन टीचर एक साल में कम से कम 500 से 1000 बच्चों को पढ़ाता होगा। तो अगर उसकी लाइफ, अगर उसकी टीचिंग करियर 30-40 साल है, तो आप कितने बच्चों की जिंदगी वो चेंज कर सकता है। एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर। करेक्ट? क्योंकि बच्चों को सुधारना, टीचर कैन डू अ ग्रेट जॉब। ओके, नेक्स्ट वन, वेयर देर इज नो होप देर कैन बी endeavor. Endeavor मीन्स सक्सेस, सपोज, एक्चुअली एफर्ट्स। जहां पे आशा नहीं है वहां पे सक्सेस नहीं है, वहां पे एफर्ट्स नहीं है।
आशा चाहिए, कुछ भी काम करे आशा चाहिए, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, दैट्स फीलिंग इज वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वन. Desire is the very sense of man. Yes, B. Spongers says, earlier Samuel Johnson says, desire is the very essence of man. आदमी की बेसिक नेचर है इच्छा रखना, सक्सेस की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा. इट्स अ कॉमन बेसिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट वन. वाइज मैन प्रीच डिसिप्लिन, ग्रेट मैन प्रैक्टिस वाइल फूल्स डिफाई. क्या बात है, डिसिप्लिन, वाइज मैन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वाइज मैन होशियार आदमी, ग्रेट मैन उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, सिर्फ फॉलो नहीं प्रैक्टिस में लगते. तो मूर्ख आदमी क्या करता है, डिसिप्लिन को रिजेक्ट करता है, डिफाई करता है, डिफाई मीन्स रिजेक्ट करता है. करेक्ट, क्यों, डिसिप्लिन की बिना लाइफ नहीं है. क्लियर, दैट्स अ ब्यूटी. नेक्स्ट वन, आई विल मूव दिस साइड. इफ अ मैन इज नॉट रेडी टू रिस्क हिज लाइफ, वेयर इज डिग्निटी. एंड्रे मैटर्स सेज, अगर एक आदमी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं तो वो डिग्निटी प्राप्त नहीं करेगा. डिग्निटी मीन्स प्रतिष्ठा, रेपुटेशन. हमें रिस्क लेना चाहिए. यस. सो अगर कोई आदमी रिस्क लेता नहीं जिंदगी में कुछ काम करने की, कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की, टू अचीव समथिंग, तो ऑफकोर्स उसको डिग्निटी नहीं मिलेगी. डिग्निटी मीन्स रिप्यूटेशन. सो इस वीडियो का ये पहला सेशन है. अभी जो रिमेनिंग थॉट्स हैं विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ऑनेस्टली प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स whether these thoughts are inspiring or semi inspiring or not inspiring. I am sure these thoughts are really inspiring and you may have like it. Clear? Yes. So please don't hesitate to comment in the box your opinion about these thoughts. और ये भी comment में लिखो कि which thought do you like it most, because all thoughts are heart touching. Clear? So मिलते हैं next video में. Have a great time. Bye bye.